Good morning to everyone. Let us do this sum. You can see in your screen A, B and C underwrote 60% of an issue of 1 lakh preferentials. So appointed underwriters are A, B and C and they are going to underwrite 60% of the issue. तो ये पार्शियल अंडरराइटिंग है, 3 अंडरराइटर्स को 60% इशू के लिए अपॉइंट किया गया। कितना शेयर्स है? प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर से 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर है 1 लाख। 60% of an issue of 1 lakh preference shares of ₹10 each in the ratio of 3:2:1. The form and marked applications of the underwriters were as follows. Marked applications were as follows. Underwriters and firm. देखो कितना अंडर, see how much it is and mark. See two things are given. Firm underwriting is given and marked applications are given. You can see when we see the firm and marked applications of the underwriters were as follows, means firm underwriting separately दिया है, marked applications separately दिया है 3 underwriters का. A का है 10,000 firm underwriting and 22,000 marked applications. B का 8,000 firm underwriting and marked application 18,000. You all know what firm underwriting is. Firm underwriting means what? कि कितना भी, irrespective of the number of shares subscribed by the public, this much shares have to be, the firm underwriting shares have to be purchased irrespective of the number of shares subscribed by the public. हमें ये कंपनी के ऊपर डिवॉल्व हो जाता है, तो ये कैसा है? ऑब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को खरीदने का. देन सी का है 6,000 फर्म अंडरराइटिंग एंड मार्क्ड एप्लीकेशन इज 10,000. इन ऑल applications for 80,000 shares were received. Total how many applications were received? 80,000 application and total number of shares to be sold is 1 lakh. पर 1 lakh का 60% ही underwriters को अपॉइंट किया है. 1 lakh का 60% is 60,000. वो 3:2:1 रेशो में अंडरराइटर्स का ग्रॉस लायबिलिटी होगा. तो रिमेनिंग 40,000 सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगा? कंपनी के ऊपर. अंडरराइटर्स को 60% शेयर सेल करने के लिए अपॉइंट किया है. सी A, B and C underwrote 60% of the issue of 1 lakh preference shares. तो 60% के लिए किसको अपॉइंट किया है? A, B and C को. और बाकी के लिए कौन सेल करेगा? Remaining 40%, it will be the company. And then in all applications for 80,000 shares were received. 80,000 का application मिला. Prepare the statement showing the liability of each underwriter and firm underwriting applications are to be treated as unmarked applications. Unmarked means benefit to the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters. जब unmarked application फर्म अंडरराइटिंग को जब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं तो का मतलब क्या होता है? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. दिस इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, previous lectures I should say, because we have discussed firm underwriting. 2 मेथड होते हैं, एक जहां पे बेनिफिट नहीं मिलता तो हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं फर्म अंडरराइटिंग को, लास्ट में सिर्फ ऐड करना है. और दूसरा जहां पे हम क्या ट्रीट करते हैं? मार्क्ड बेनिफिट देता है. इफ वी गिव द फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर, देन फर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं. बेनिफिट मिलता है तो मार्क्ड एप्लीकेशन पहले लेस करते हैं, बाद में ऐड करते हैं एंड में. इधर लास्ट में सिर्फ ऐड करना रहेगा. ठीक है. So let us start the sum.
तो सबसे पहले हाउ डू वी स्टार्ट एवरी सम? यस, यू आर राइट, वी विल स्टार्ट विद ग्रॉस लायबिलिटी. नाउ ग्रॉस लायबिलिटी क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 1 लाख, जिसमें 60-40 है ना, 60% अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स क्या बोला है? आर अपॉइंटेड फॉर 60% ऑफ द इशू ना. 60% ऑफ द इशू के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट किया है. सो 1 लाख का 60%, which is equal to 60,000 shares divided in ratio of क्या रेशियो बोला डिवाइड करने? 3:2:1. तो ये रेशियो में डिवाइड करेंगे. अंडरराइटर्स का नाम है A, B and C. So how much it is? 60,000 into 3 plus 2 plus 1 is how much? 3 plus 2 plus 1 is 6. So this will become 30,000 shares. Then again 20,000 हो जाएगा ना, 2:6. See whether you are getting this answer. ग्रॉस लाइबिलिटी B का रहेगा 20,000 shares and C का ग्रॉस लाइबिलिटी will be 1/6, which is 10,000 shares. So we have got the gross liability. How much it is? यहाँ पे basis बोला है 3:2:1. और हमें सिर्फ कंपनी का नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है? We have to prepare the statement showing liability of each underwriter. Each underwriter का हमें क्या करना है? Liability show करना है. तो how much it is? 30,000. B से it is 20,000. C से it is 10,000. So कंपनी का liability कितना रहेगा? 1 लाख में 60,000 अगर 60% के लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया तो 1 लाख माइनस 60,000 कितना बैलेंस बचा जो शेयर्स कंपनी को सेल करना है? That is 40,000. I hope this is clear to all of you. 1 लाख में पहले लाइन में ही बोला गया है that 60% of the issue of 1 lakh इसके लिए अंडरराइटर्स अपॉइंट हुआ है. तो 1 लाख में 60% is 60,000. So remaining 40,000 सेल करने का. See when underwriters are appointed for partial issue, तो जो बैलेंस पार्ट होता है उसके लिए the underwriter becomes, company becomes the underwriter. बैलेंस पार्ट के लिए who becomes the underwriter? कंपनी. सो यहाँ पे 40,000 सेल करने का जिम्मेदारी किसको आ जाएगा? कंपनी को. सो लेट अस फ्रॉम हियर लेस द मार्क्ड एप्लीकेशंस. ग्रॉस लायबिलिटी से क्या लेस करते? ग्रॉस लायबिलिटी से लेस करते मार्क्ड एप्लीकेशंस. दिस इज गिवन, आई सपोज मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन. हाउ मच? 22,000 A का, 18,000 B का and 10,000 C का. Given na here 22, 18 and 10. So let us reduce it. लेकिन ब्रैकेट रहेगा because less करना है. 22,000 60% यहाँ पे दिया है. 1 लाख का 60% इशू के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट किया. So 1 लाख का 60% is 60,000 and रेशियो बोला गया है क्या है? कैसे डिवाइड करना है? 3 अंडरराइटर्स पे ये 60,000 शेयर्स को कैसे डिवाइड करना है? 3:2:1 which we have done and found out कि A को मिलेगा 30,000, B
बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 10,000. Now let us go to writing the firm underwriting. So not firm underwriting, marked application. Gross liability से क्या माइनस होता है? Marked application माइनस होता है. And C का it is 10,000. There nothing is there. कुछ नहीं है. So add करो, how much you get? 22 plus 18 plus 10. Is it coming to, how much is it coming to? 22 plus 18 plus 10. It is coming to 50,000. 22 plus 18 is 40,000 plus 10 is 50,000. तो इसके बाद हमें मिलता है बैलेंस, और ये बैलेंस कितना है? बैलेंस 30 minus 22, we get 8,000. 18 minus 20 minus 18, we get 2,000 here. Nil. Same 40,000 ही आएगा. 40,000 minus nil, and we get here 50,000. इससे क्या लेस करते हैं? इससे लेस करते हैं unmarked applications. What is unmarked applications? Unmarked application is total application minus marked application. Total application minus marked application करते हैं तो हमें मिलता है unmarked application. So let us go here. Let us go. Total application है 90,000, correct? Sorry. Total application है 80,000. Total application received is how much? 80, and marked application is 50. यहाँ पे total लिखा है, देखो marked application का. Marked application is 50. 80 minus 50, unmarked application कितना रहेगा? 30,000. Still in the working note we can show unmarked applications is equal to total application minus marked applications. Which is how much? 80 minus 50. Total application received है 80, marked है 50. So unmarked हमें मिल गया 30,000 shares. Unmarked हमें मिल गया 30,000 shares. अब unmarked को हम क्या करेंगे? हमारा रेशो जो है उसमें डिवाइड कर देंगे. What? So let us divide the unmarked applications. Not let us divide 30,000 आया है ना, तो उसको डिवाइड नहीं, क्या करेंगे? देखो इधर 1 minute. See 30,000 जो हमें आया है ये हम लोग this unmarked application we will see. Marked application का बेनिफिट किसको मिला? Marked application का बेनिफिट मिला अंडरराइटर्स को. सो जो टोटल एप्लीकेशन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? उसमें किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं है एंड पूरा इशू के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट भी नहीं किया. गेटिंग माय पॉइंट हियर इन दिस क्वेश्चन, अंडरराइटर इज अपॉइंटेड ओनली फॉर 60% इशू, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन में अंडरराइटर्स को उनका बेनिफिट मिल गया, जिसमें उनका स्टैंप था वो उनको दे दिया. अब जिस एप्लीकेशंस में किसी का स्टैंप नहीं है उसमें क्यों अंडरराइटर्स को अभी मिलेगा, उसमें क्यों बेनिफिट मिलेगा अंडरराइटर्स को? तो वो 30,000 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वो हम डायरेक्टली किसको देंगे?
that benefit will be given to the company. So whenever there is partial issue, तो मार्क्ड एप्लीकेशन, इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही सम किया है जिसमें कंपनी वाज पार्शियल इशू था, जो बैलेंस शेयर था वो कंपनी को सेल करना था, उसमें भी हम अनमार्क्ड का बेनिफिट किसको देते हैं, कंपनी को. सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन डज नॉट बेयर एनी स्टैंप ऑफ एनी अंडरराइटर, तो वो किसको देंगे, कंपनी को देंगे. तो यहाँ पे now how much you have, net liability 8,000, $2,000. This is how much? लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग. इनको फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स को भी the underwriters have to in any way firm underwriting shares, so उनके ऊपर obligation है. So how much is firm underwriting? That is given in the question. 10, 8 and 6. From where did I get? It is given in the question 10, 8 and 6. So A का 10,000, 8,000 and 6,000. B का is 8,000. See, firm underwriting shares already हर एक अंडरराइटर को कितना परचेज करना है, फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन. और जब बेनिफिट नहीं मिलता अंडरराइटिंग का, तब हम फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं और लास्ट में ऐड करते हैं. लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते. तो लास्ट में ऐड करते हैं 6,000 सी का. So this is how much, 6,000, and this company has to 10,000. सबको ऐड करो, ये इसको ऐड करो. हाउ मच इट इज, 10 plus 8 plus 6 plus 10, 20, how much it is coming, 28, 34. This is coming, how much it is coming, 30. How much it is coming, 34, 10, 10, 20, 38. So total is the total liability. This is coming to 18,000. This is coming to 10,000. 6. एक मिनट, ये मैंने कहाँ से लिखा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. हियर बाय मिस्टेक आई रोट हियर 10,000, 6,000. So this is becoming how much? 1 minute. यहाँ पे एक चीज मैं भूल गई, ये 10,000 इधर लिख. See here, I again repeat, firm underwriting को ऐड करना है. तो firm underwriting A का है 10,000, B का है 8,000, C का है 6,000, राइट? इतना दिया हुआ है. सो टोटल फर्म अंडरराइटिंग हो जाता है 24,000. सो टोटल लायबिलिटी के लिए सब ऐड किया तो कितना मिला, 18, 10, 6, 10,000 कंपनी का ऑलरेडी था, जो सेल नहीं हुआ उसको सेल उसके ऊपर आएगा, बिकॉज अंडर कंपनी इज assumed to be the underwriter for the balance issue. 60% इशू के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट किया, तो बैलेंस 40% इशू के लिए who is assumed to be the underwriter, company. So this is the final position. With this, yes, this sum is done.